Dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 11th subject history and we are in theme 6th. Today we will discuss the factors that affecting the social and economic relationship. यानी वो वजूहात वो काजेज़ जो समाजी और इक़्तिसादी रिलेशन जो थी लॉर्ड्स और पीजेंट्स के दरमियान यूरोप में, स्पेशली इन मिडीवल यूरोप, तो उन कौन कौन से काजेज़ थे, कौन कौन से जो फैक्टर्स थे दैट रिफ्लेक्ट और दैट इफ़ेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, वी विल डिस्कस. We have to discuss, and if you will go through your textbook in page 142, you will witness this. The factors that affecting the social and economic relationship between the two lords and the peasants. First of all, while discussing the factors, the members of the first two orders saw the social system as stable and unchanging. There were several processes which were transforming the system. Some of these, such as changes in the environment, were gradual and almost imperceptible. Others were more dramatic, like the change in the agricultural technology and land use. These in turn were shaped by and had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. Let us examine these processes one by one. यानी अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स जो थे, स्पेशली इन द लॉर्ड्स और जो क्लर्जी और नोबल्स जो थे, दे सा इन द सोशल सिस्टम द स्टेबल social system, unchanging social system, and the changes in agriculture technology and land use. They had the different aspects or the effects, and we will discuss them one by one. First of all, the environment. ये कौन से हालात थे, ये किस तरह उन्हें इनके समाजी और इक़्तिसादी ज़िंदगी को संवारने में, शेप करने में इनका क्या रोल रहा है. From the 5th to the 10th centuries, most of the Europe was covered with a vast forests. Thus, the land available for agriculture was limited. Also, peasants dissatisfied with these conditions that could flee from oppressions to take refuge in the forests. यानी अगर हम 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक की जो हालात के बारे में जो यूरोप में थे, एग्रीकल्चर स्पेशली ऑन द बेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम थी. जो कामगार लोग थे, जो पीजेंट लोग थे, जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसमें पूरी नहीं होती थी, उन्होंने फिर रुख किया था जंगलों का, फॉरेस्ट्स का. यूरोप वाज undergoing an intensely cold climatic spell in this period. This led to a severe and prolonged winters, a shortened growing seasons for crops, and reduced the yield from agriculture. यानी 5वीं सदी से 10वीं सदी तक जो पीरियड जो यूरोप में गुजरा है, वो एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ही टफ था, बहुत ही अनप्रोडक्टिव था. इट वाज इफेक्टिव फॉर द एग्रीकल्चर एंड द पीपल रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम था. जो स्पेल था, क्लाइमेटिक कोल्ड स्पेल था, और जो ग्रोइंग सीज़न था वो बहुत ही कम था. उसमें क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होते थे,
वो पुख्ता नहीं होते थे क्योंकि ज़्यादातर सर्दी थी, तो नामुमकिन था उनकी, अब रोजी रोटी से उनकी भी मुतासर थी। फ्राम द 11th century, Europe entered a warm phase. Average temperatures increased, which had a profound effect on the agriculture. Peasants now had a longer growing season, and the soil now less subjected to frost could could be more easily plowed. Environmental historians have noted that there was a significant uh, receding of the forest line in many parts of the Europe. This made expansion of the एरिया अंडर द कल्टिवेशन पॉसिबल। यानी अब जब 5वीं से 11वीं सदी का जो था बहुत ही शॉर्टेंड पीरियड था। 11वीं सदी में अब शुरुआत हुई है वार्म सीज़न की। लॉन्ग कल्टिवेशन जो लॉन्ग जो एग्रीकल्चर सीज़न जो शुरुआत हुई थी, उसमें जो इजीली जो उनके लिए जो कल्टिवेबल जो टाइम था उनके पास अवेलेबल था, अब उन्हें बहुत से जो मुश्किलात थे उनसे थोड़ा छुटकारा मिला। अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दे मेड एक्सपेंशन इन द एरियाज़ अंडर द कल्टिवेशन। अब जो इससे पहले जो कल्टिवेबल लैंड था वो बहुत ही कम था, क्योंकि उन्हें फसल उगाने में बहुत मुश्किलात होती थी, कोल्ड सीज़न था। अब 11th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो सीज़न जो रहा वो दैट वाज कल्टिवेबल, दैट वाज emperable or good season for the peasants, for the agriculturists. Now the frost जो था, frost means the cold weather that would cause frost, यानी वो जो सर्द जो यख जो था उनकी जो तह जमती थी उनमें वो उनको मुश्किलात होता था। लेकिन अब 11वीं सदी से ऑनवर्ड्स उसकी कमी हुई, एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई। लैंड यूज़ सेकंड, इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्रिमिटिव। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पीजेंट्स वाज द वुडन प्लो। इससे पहले भी आपने पढ़ा था और आपने सुना भी था कि क्योंकि द प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज ओनली द वुडन प्लो, जो लकड़ी का वो जो हल जो उनके पास अवेलेबल था वही एक था। उसमें वो इनिशियल स्टेज था उनके बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि इनिशियल स्टेज था प्लो सिस्टम का, तो दैट वाज ए प्रिमिटिव स्टेज। डाउन बाय द टीम ऑफ ऑक्सन, ड्रॉन बाय द टीम ऑफ ऑक्सन, जो बेल जो हल जोतने में उनसे उनका इस्तेमाल होता था। दिस प्लो कुड बी एट बेस्ट स्ट्रेचेस एंड surface of the earth and was unable to fully draw out the natural productive of the soil. Agriculture was therefore very labor intensive. Fields had to dug by hands, often once in 4 years, and enormous manual labor was required. यानी अब इसमें क्या था कि इसमें ज़्यादातर हाथों से काम करते थे लोग, इसमें ज़्यादा लेबर कंपोनेंट इस्तेमाल होता था, मुश्किलात ज़्यादा थे फील्ड इस्तेमाल करने में, और प्रोडक्ट जो था वो बहुत ही कम था। आल्सो द ineffective method of crops rotation was in use. The land was divided in half and field half. One field was planted in autumn with winter wheat, while the other field was left fallow. Ray was planted on this piece of fallow land, and next year while the other half was put to follow. यानी ज़मीन को भी
अब उन्होंने एक साल के लिए एक फसल के लिए, दूसरे साल के लिए दूसरे फसल के लिए, कहीं बरसों के लिए वो खुला भी उसको यूँ ही विदाउट द कल्टीवेशन भी रखते थे, सो दैट इट मे गेन इट इज़ फर्टिलिटी, क्योंकि उससे रोटेशन के बुनियाद पर ज़मीन में जो फर्टिलिटी थी वो क्यों कम होती थी कल्टीवेशन से, लिहाजा उसको फर्टिलिटी गेन करने के लिए, फर्टिलिटी बरकरार रखने के लिए उसको रोटेट बुनियाद पर ज़मीन का इस्तेमाल करते थे और फसल भी रोटेट करते थे. With this system, the soil slowly deteriorated and famines were not uncommon. Chronic malnutrition alternated with the devastating famines and it was difficult for the poor. यानी एक और जो अब लैंड यूज़ में जो प्रॉब्लम जो थी, दैट वाज द एग्रीकल्चर जो थी, दैट वाज प्रिमिटिव, ओनली वुडन प्लो था एंड वाज वेरी लेबर इंटेंसिव. इफेक्टिव मेथड्स जो थे रोटेशन के हवाले से, दैट वाज इन यूज़. डेट जो डेवास्टेटिंग फैमेन्स थे, दैट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चरलिस्ट्स. और इसके साथ साथ इनकी हालत भी बहुत ही तबाहकुन थी. इसमें डिजीज़ भी थी, माल न्यूट्रिशन भी था, और जो कहत वबा उसका भी अपना रोल रहा था इनको बर्बाद और तबाह करने में. Despite these hardships, the lords were anxious to minimize the income, since it was not possible to increase the output from the lands. The peasants were forced to bring under the cultivation all the lands in the uh, mineral states, spent more time doing this than they were legally. They could not protest. They could not protest openly. They resorted passive resistance. They could produce half that they could product of that labor for themselves. They also avoid performing unpaid extra services. They came into conflict with the lords over pastures and forest lands and saw these lands as resources to be used by the whole community, while the lords threatened these as their private property. यानी अब जो पीजेंट्स और लॉर्ड्स के दरमियान अब कन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हुई. शुरू में उन्होंने डायरेक्ट उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, बट दे हैव ए पैसिव प्रोटेस्ट, दे हैव ए स्लो प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट देयर लॉर्ड्स एंड देयर ऑपरेसर्स. आहिस्ता क्योंकि दे प्रेशराइज देम टू यूज़ देयर माइनर लैंड्स. अब जो लॉर्ड्स का जो अवेलेबल एरिया था, जो उनका जो लैंड जो था, उसमें वो ज़्यादातर काम कराना चाहते थे पीजेंट्स को. पीजेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था वो उसमें काम करेंगे, क्योंकि उनमें फ्री काम करना था माइनर्स में, क्योंकि वो एरिया था जो लॉर्ड्स का था, जो उनके एरिया में पीजेंट्स को काम कराने पर मजबूर करते थे. इस तरह लॉर्ड्स और जो पीजेंट्स के दरमियान जो उनमें, क्योंकि दे यूज्ड टू हैव मिनिमम इनकम and the conflict started between the peasants and the lords. This was the problem regarding the use of land. अब इसके बाद एक और जो एग्रीकल्चर में जो तब्दीली हुई, जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई, दैट वाज विद द एडवेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. अब न्यू टेक्नोलॉजी में कितने बेनिफिट्स हुए, उससे क्या फ़ायदा हुआ, लॉर्ड्स को भी फ़ायदा हुआ, पीजेंट्स को भी फ़ायदा हुआ, और इनकी जो ज़िंदगी भी वो अपलिफ्ट हुई. बाय द 11th century देयर इज़ एविडेंसेस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. इंस्टेड ऑफ बेसिक वुडन प्लो, cultivators began to use heavy iron tipped plows and mud boards. These plows could dig much deeper, and mold boards turned to topsoil
properly. With this, the nutrients from the soil were better utilized. अब जो लकड़ी का जो हल जोतने का जो प्लो था उसके बदले में अब आयरन टिप्ड प्लो ने काम जगह ली। इससे कि वो ज़मीन को बहुत ही गहराई में खोदने में कामयाब हुए और इससे प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हुआ और ज़मीन को कल्टीवेट करने में भी वो माहिर हुए। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कल्टीवेशन में आ गई और इसमें पीजेंट्स को भी फ़ायदा मिला। The method of harassing animals to the plow improved. Instead of the neck harness, the shoulder harness came into the use. This enabled animals to exert great power. Horses were now better shod with the iron horse shoes, which prevent foot, foot decay. There was increased use of wind and water energy for agriculture. More water powered and wind powered mills were set up all over the Europe for the purpose of milling corn and pressing grapes. अब जो आयरन टिप के साथ एग्रीकल्चर में तब्दीली आई, इनकलाब आया। अब इसमें जो हार्नेसिंग में भी, क्योंकि अब से पहले जो नेक हार्नेसिंग की शुरुआत थी जानवरों को चलाने में, घोड़ा गाड़ी में, हल जोतने में, उनसे वो काम लेते थे। अब द नेक हार्नेस वाज नाउ रिप्लेस्ड एंड विद द शोल्डर हार्नेस। अब उससे बहुत ये फ़ायदा मिला कि अब ज़मीन और जो बाकी जो जानवर इस्तेमाल हुआ करते थे उसमें भी अब थोड़ा डेवलपमेंट हुई है। There were also changes in the land use. The most revolutionary one was the switch from the of a two-field and a three-field system. In this, peasants could use a field 2 years out of the 3 if they plant it within one crop in autumn and a different crops in spring. A year and a half later, that meant that the farmers could break their holding into their 3 fields. They could plant one with wheat and rye in autumn for human consumption. The second could be used spring and to raise the peas, beans, and lentils for human use, and oats and barley for the horses. The third field lay follow. यानी अब ज़मीन की जो कल्टीवेशन में अब उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 जो अब फसलें भी उन्होंने वो बनाई, जो पहले इंसानों के लिए भी अब जानवरों के लिए भी फसलें, जिस तरह घास वगैरह भी अब उन्होंने इसकी शुरुआत की, ताकि वो जो पास्चर्स पे वो डिपेंड करते थे उसमें भी थोड़ा लोअर लेवल में, स्पेशली प्लेन्स में जो जानवरों के लिए वो घास उगाते थे उसमें भी उनकी सहूलियत हुई। और जो ह्यूमन जो उनकी ज़रूरियात थी इंसानों के लिए भी, जिसमें पीज़ हैं, इसमें और जानवरों के लिए भी उसने भी घास वगैरह भी अब उगाने के लिए वो शुरुआत हुई। और कुछ फील्ड्स को स्प्रिंग के लिए, कुछ आटम के लिए और कुछ हाफ ईयरली उन्होंने इस्तेमाल करने, उसमें भी डेवलपमेंट हुई, उनकी भी थोड़ा तब्दीली हुई। द थर्ड फील्ड, each year they rotated the use among the 3 fields. With these improvements, there was an almost immediate increase in the amount of food produced from the each unit of land. Food availability in double now. यानी अब इस तरह ये फ़ायदा हुआ, इसमें ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि जो प्रोडक्शन थी that got doubled now, and the new technology and the best use of land, agricultural use
and with the help of technology, with the help of new implements, seeds, and the instruments, the agriculture got the production got doubled. Agriculture was now developed, and the land was now under cultivation. It was increased expansion of land in cultivation, and it helped the peasants and as well as the lords. And this was the three factors which affected: number one, the environment, that was, and the second, the land use or the use of land, and the third, that was the help of new agricultural technology. And with the agricultural technology, and with the help of new implements, the production got doubled, the production got, and the help of the different crops, agricultural peasants, their condition was now better than the previous, or their position was good. Thank you.